حضرت روزانہ 400 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے. 4000 اتنے نیک اتنے پائے کہ بزرگ ولایت کبریٰ پہ فائز ہونے کے بعد روز 4000 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرتے تھے. بزرگان دین کے تعلیمات کیا ہے؟ ان کے رہن سہن کو اپنانا ان کے تعلیمات ہے، ان کے بول چال کو اپنانا وہ تعلیمات ہے، ان کے لب و لہجے کو اپنانا وہ تعلیمات ہے. یعنی ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کے جو انہوں نے جو کیے وہ اس پر نقش قدم پر چلنا وہ بزرگان دین کے تعلیمات کہے جاتے ہیں. فرامین بھی ہے، تعلیمات بھی ہے. آپ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا تو حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو جھکائی. جب احمد کبیر رفاعی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا، اس کے ساتھ وہ عوام میں اس لوگوں میں حضرت غوث اعظم دستگیر بھی موجود تھے. وہ ہے احمد کبیر رفاعی. عبادتوں میں ہم تو نہیں کر سکتے، 100% میں سے 1% بھی کر لیں تو اس زمانے میں بڑی بات ہے. لیکن حضرت کے جو تعلیمات تھے، مثال کے طور پر احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مچھر بیٹھتا تو آپ اس کو اڑا نہیں تھے، ہٹا نہیں دیتے تھے، کہتے تھے اس کا قسمت کا خون میرے جسم میں ہے، اسے پی لینے دو. گرما میں آپ باہر چلتے، ٹڈیاں اگر آپ کے سائے کے اندر آ جاتی تو وہیں رک جاتے تاکہ کچھ دیر ٹڈیوں کو سائے میں رہنے دو، سکون سے رہنے دو. یہ تعلیمات احمد کبیر رفاعی ہے. آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے، آپ کے آپ کے آستین پر بلی سو رہی ہے، نماز کا وقت آیا، آپ بلی کو اٹھائے نہیں، اپنا آستین کاٹ کر آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں. یہ احمد کبیر رفاعی ہے. آپ راستوں پہ رک جاتے، راستوں پہ ٹھہر جاتے، کوئی اندھے لوگوں کا انتظار کرتے، اگر اندھا و نابینا مل جائے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر لے آ کر میں اس کی منزل تک پہنچاؤں. یہ احمد کبیر رفاعی ہے. آپ جنگل کو جایا کرتے، کوئی بھی سفر سے واپس آتے تو جنگل سے لکڑیاں چون کے لاتے. مریدوں سے بھی کہتے کہ لکڑیاں اکٹھا کرو تو مریدین پوچھتے ہیں سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں جو غریب رہتے ہیں، جو معذور رہتے ہیں، جو ضعیف رہتے ہیں، ان کے چولہا جلانے کے لیے ان کے گھروں پہ لکڑیاں پہنچا دو. یہ تعلیمات ہے احمد کبیر رفاعی کے. یعنی جیسا کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ یہ واقعہ درج کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے سنو ایک ساتھ، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ایسی چیز لا موسیٰ جو میرے پاس نہیں ہے، تو ایسی چیز لے آؤ جو میرے پاس نہیں ہے. تو موسیٰ نے کہا اللہ تو پروردگار ہے، تمام خزانے تیرے پاس ہے، ہر چیز تیرے پاس ہے، ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو تیرے پاس نہیں جو ہمارے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ بات چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے تمہارے پاس ہے. بولے کیا ہے؟ تمہارے پاس عزت ہے، تمہارے پاس انکساری ہے، تمہارے پاس تواضع ہے. میری بارگاہ میں آنا ہے تو انکساری لے کے آؤ، میری بارگاہ میں آنا ہے تو تواضع لے کے آؤ، میری بارگاہ میں آ تو انکساری لے کے آؤ. تو حضرت احمد کبیر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے قرب پہنچنے میں سب میں بہترین جو ذریعہ چنا ہے وہ میں نے انکساری چنا ہے. انسان کے اندر عاجزی و انکساری رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ وہ احمد کبیر رفاعی ہیں. ہم گناہوں کو اپنی کمری میں چھپانے والے، گناہوں کو قریب کھینچنے والے. ایک میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، مجھے واقعہ یاد آیا. ایک شخص حضور غوث اعظم دستگیر کے پاس جاتا ہے، وہ غوث اعظم دستگیر میرے لیے دعا فرمائیے، میری بدبختی ختم ہو، میری دلندراگی ختم ہو، میری یہ کمبختی ختم ہو. تو غوث اعظم دستگیر اس کی دعا کر کے کہتے ہیں تیری قسمت میں خوشبختی نہیں ہے، تو نیک بخت نہیں ہو سکتا، تو بدبختی ہے. وہاں سے بغداد سے وہ چلے گیا مایوس. کچھ دنوں کے بعد اس کا دورہ بصرہ میں ہوا. وہ حضور احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں داخل ہوا.
अहमद कबीर रफ़ाई फरमाते हैं हम ऐसी ही लोगों के लिए हम यहाँ बैठे हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं, उसके लिए हाथ उठा के दुआ कर देते हैं, उसकी नेक बदबख्ती ख़त्म हो जाती है, किस्सा ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद वो शख्स का जाना बगदाद हुआ, हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तता है तो गौसुल आज़म दस्तगी उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो कहते हैं कि क्या तू अहमद कबीर रफ़ाई के पास हो आया है? वो शख्स कह करता है हाँ मैं अहमद कबीर की रफ़ाई के पास हो आया हूँ। बोले ये वही कर सकते हैं, तेरी तकदीर जो थी बदबख्ती की वो हट गई, तूने वक्त हो गया। तो बोले थे जब मैं देखा तो तेरी पेशानी पे बदबख्त लिखा हुआ था, आज तेरी पेशानी में नेकबख्त लिखा हुआ है। यह अहमद कबीर रफ़ाई है। हम रफ़ाई किसी को तकलीफ नहीं देना। वो ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है, हमारे खातिलों को भी जो है खाना खिलाया करते थे, खातिलों को भी जो है पानी पिलाया करते थे। जब से जो बात चल रही है यहाँ पर कि हर जगह ये अंबिया के पीछे रहे, रसूलों के पीछे रहे, औलिया के पीछे रहे, ये अहले बैत के लिए नई बात नहीं है। ऐसे वाक़यात होते रहते, ऐसे वाक़यात देखते रहे थे। मैं परसों सोचा था कि 2 लोगों को सिलसिले में से निकालूं, शाह साहब से भी बात हुई थी, क्योंकि मरकज़ है, अगर सिलसिले के ख़िलाफ़ कोई जाता है, यहाँ के जो रस्म रिवाज के ख़िलाफ़ कोई जाता है, तो जो लानती बनता है तो उसको सिलसिले से किस तरह खारिज किया जाए। उसकी सदा ना यहाँ कबूल की जाएंगी, ना उसकी हाज़िरी यहाँ कबूल होगी, ना उसकी हाज़िरी हम्बड़ में कबूल होगी। बगुल खान साहब उसकी हाज़िरी ना बगदाद में होगी, ना मदीने पाक में होगी, तो उसको कैसे निकाला जाए। मैं सोच रहा था, फिर मैं बोला जाने दो। उसके बाद जब अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने एक वाक़या लिखा। अल्लाह ताला ने मूसा और हारून को कहा तुम फिरौन से भी हुस्न सुलूक करो, तुम फिरौन से भी अच्छे तरीके से बात करो ताकि वो सुधर जाए। सुभान अल्लाह। तो हमारा जो सिलसिला है सुधारने का सिलसिला है, तोड़ने का सिलसिला नहीं। हम तो खामोश रहे थे लेकिन निस्बत खामोश नहीं। ये वो अहमद कबीर रफ़ाई है, क्योंकि कराम जब तक आप हजरत करामात सुन रहे थे, लेकिन और एक मशहूर करामात हजरत की याद आ गई। औलिया कई हैं, कुरान पीर, उसके बाद अहमद कबीर रफ़ाई, ये ऐसे बुजुर्गान दीन है जिसको देवबंदी हजरात में आपके करामात और आपके ताल्लुक़ से लिखा है। हजरत अहमद कबीर रफ़ाई बैठे हुए हैं, एक शख्स उड़ता हुआ आपके सामने हाजिर हुआ। अब्दाल था वक्त का, कहने लगा मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खिला दो। क्या खाना चाहता है? 2 मुर्गाबियाँ उड़ रही थी, आप बता के बोला मैं वो खाना चाहता हूँ। आप अपने हाथ से इशारा फरमाते हैं तो फौरन मुर्गाबी भून के आपके सामने आ गई। कुछ पत्थर रखे हुए थे, आप और जैसे पत्थर पे हाथ मारे तो पत्थर बेसन की रोटी बन गई। आप वो दोनों उठाए और पानी कश में जो है कशकोल में पानी आया, बहरहाल वो पानी पी लिया, रोटी खा लिया, गोश्त खाकर शराब होके चले गया। यहाँ तक तो सही था। अहमद कबीर रफ़ाई ने बाएं हाथ से भाग्या को जमा किया, सीधे हाथ से हुक्म भेजना कहा। सुभान अल्लाह। ये है अहमद कबीर रफ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब का हमारा तकरीबन खुलफा इकराम का वहाँ जाने का मौका मिला। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इस साल फिर वहाँ पर जाएंगे। आमीन आमीन के साथ इमाम अहमद कबीर रफ़ाई के बाद बेचैनी रही, करीब 1 रात रहे, कुछ घंटे रहे, लेकिन सीधा आपके बसरा में लैंड करेंगे और अहमद कबीर रफ़ाई की बारगाह में जो है वह रहेंगे और वहाँ पर भी खानका है बियाबनियाँ बना के। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी मदद को कबूल अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह कबूल करे, हमको अल्लाह कबूल उन बुजुर्गान दीन के तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और यहाँ पर जो सिलसिले से वाबस्ता नौजवान आए हैं, जो भी खुलफा आए हैं, देखो मुरीद कई किस्म के हैं। एक मुरीद 3 किस्म के मुरीद होते हैं, जिसमें से एक मुरीद रस्मी बताया जाता है। रस्मी मुरीद बोले तो बाप मुरीद हुआ, आके बेटा भी मुरीद हो गया, मियाँ मुरीद है तो बीवी भी मुरीद हो गई, महल्ले वाले इलाके मुरीद, उसको कहते हैं मुरीद, रस्मी मुरीद होता है। दूसरा होता है मुरीद मतलबी, कारोबार नहीं चल रहा, बच्चे नहीं हो रहे, बिजनेस नहीं चल रहा, परेशानियां हैं, दुबले हो जा रहे हैं, डॉक्टर की दवाएं नहीं लग रही, फला हो रहा, सब जगह से दर फिर के आगे, वो होता दूसरा किस्म का मुरीद, उसको मुरीद मतलबी कहते हैं।
तीसरा मुरीद होता है मुरीद हक़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह अफजल यानी फरमाते हैं तालिब दुनिया तो बहुत आते हैं, तालिब उक़बा कम आते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, किस्सा ख़त्म, ये दारे फ़ानी में जी रहे हैं। हकीकी ज़िंदगी कौन सी है? बरोज़ क़यामत हम जो उठने वाले हैं, 135 साल की उम्र में उठेंगे, सब वहाँ पर जवान उठेंगे। वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। करोड़ों साल उसके अंदर जिएंगे और जिनसे मोहब्बत करेंगे बरोज़ क़यामत उनके साथ तुम उठा हो जाओ। आमीन सुम्मा आमीन। तो थोड़ा वक्त तो मुरीद हक़ी बनो। ऐसे हम सऊदी अरब, अमेरिका, जापान जाके कमा के पैसे ट्रांसफ़र करते ताकि बुढ़ापा सही गुजरे, मेरा घर बने। ये फानी ज़िंदगी के वास्ते घर, हर चीज़ सब करते, हम भी कर रहे, सब करते, लेकिन खबर में जब जाते तो कोई चीज़ आपके साथ नहीं आती। साथ आने वाली चीज़ क्या है? उसके वास्ते मुरीद बनो, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। वो ज़िंदगी के लिए तैयारी करो, इसीलिए मुरीद होते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 16 साल अपनी पीर मुर्शिद की खिदमत खानी नहीं करे। शाह अफजल बियाबानी 10 साल मुजाहिदा खानी नहीं करे। तो इन्हें क्या चाहते हैं कि या मेरे दादा जब किसी को मुरीद करते तो सुने अपनी मुँह को दुआ लगा के रोते थे। बोले हज़रत आप क्यों रो रही? बोले बरोज़ क़यामत अगर अल्लाह पूछेगा तो तेरे मुरीद को क्या तैयार किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? ना पीर को टाइम है ना मुरीदों को टाइम है। आज तो जिस क्या है चमत्कार को नमस्कार, वैसे जाहिल तरीन लोग पैदा हुए। तो जो जाहिल तरीन क्या तालीमात हैं उनके, क्या तालीमात उनके, देखो लाइन से है या तीनों को चारों को देखे हुए। जुनैद बगदादी का किस्सा याद आ रहा है। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मुरीद अक्सर बैठा करते थे, कुछ दिनों से गायब हो गए, आ नहीं रहे। तो आपने कहा कि क्यों फला शख्स क्यों नहीं आ रहा? तो पिछले पीर भाई जाके पूछते तुम हजरत के पास क्यों नहीं आ रहे? मैं बोले हजरत से बड़े हजरत मिल गए मेरे। कितने बड़े मिले? बहुत बड़े मिले। बोले क्या है? बोले रोज बुर्राक को लाते, मैं बुर्राक पे बैठता हूँ, जन्नत की सैर करता हूँ, जन्नत में जाकर फूल फलारी सारे चीज़ें खा के फिर सुबह होने से पहले मैं अपने घर पे आता हूँ। इतने बड़े हजरत में खुद। तो लोग जाके जुनैद बगदादी को बोले ऐसा ऐसा बोल रहा। तो आप बोले ठीक है, उसको बोलो जब बुर्राक में बैठ जाएगा, जन्नत की सैर कर लेगा, जब उन्हें जन्नत के मेवेजात खाएगा, जब कुछ भी नहीं खाली या जुनैद बोलो। तो ठीक है, वो बोल देते उसको, उन्हें भी सुन लेता। फिर बुर्राक खाती, फिर बुर्राक पर बैठता, जन्नत को चले आता। जब फला खाते रहता तो ये वाक़या याद आता। फल खाते वक्त में खाली या जुनैद बोलता उन्हें, बोलते सारे चीज़ें ख़त्म हो जाते। शहर के बाहर जो कचरा रखा उस पे उन्हें बैठा हुआ है, बुर्राक के जब पे खदा उसके सामने बना हुआ है। तौबा करते हुए भाग के आए, बोले तू जा रहा था जो बुर्राक वो खदा था, तू इसको जो ले आ रहा था वो तेरा शैतान था। असल तालीमात ये बुजुर्गान दीन के पास है, असल चीज़ वो बुजुर्गान दीन के पास है। हम कोई तावीज़ भी देते हैं तो डायरेक्ट नहीं देते, पहले तावीज़ लिख कर उनके ख़त्मों में रख कर उनके गिलाफ में रखने के बाद दी जाती है ताकि इस तावीज़ में असर हो। सुभान अल्लाह। जिक्र करने से पहले, ज़ियारत करने से पहले हमारे आज एक तालीम की बात बता रहा हूँ। रात में सोते वक्त में तौबा करें, सुबह उठते ही कलमे तैयबा पढ़ें। उसी तरीके से जब आप खदमबोसी को जाते हैं, तौबा कर कर कलमा पढ़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़े तो देखिए साफ शफाफ हो जाते हैं, साफ शफाफ हो जाते हैं। दोपहर में जो बात हुई वो बात अच्छी तालीम, बेहतरीन महफिल रही। एक छोटी मिसाल देता हुआ ख़त्म करूँ। लकड़ी की सिफत क्या है? लकड़ी की सिफत जलना है। लकड़ी जलना है। लकड़ी को पानी में डुबो दो, भिगो दो अच्छा, रात भर, 2 दिन 10 दिन, उसके बाद सिलगाओ, सिलकती नहीं सिलकती, कहीं को कच्चापना छा गया। तो हम भी क्या है, अच्छी लकड़ी थे, ये गुनाह हमारा कच्चापना हो गया। 24 घंटों माँ बाप की बेइज्जती, चुगलखोरी, गीबत, अनार, तकब्बुर, इसकी गीबत, उसकी गीबत, इसकी बुराई, उसकी बुराई, कुछ लेके नहीं देके नहीं, गैर जरूरी अपना जो खट्टा है ना बाएं हाथ का बहुत बड़ा ले रहे, बहुत बड़ा ले रहे। एक अच्छा मशवरा में क्या बोलते, एक महावरा मुझे याद है। बहरहाल ऐसी लकड़ी बनो जो जले, ऐसा दिल रखो जो डायरेक्ट आगे दिल में उतर जाए, डायरेक्ट दिल में उतर जाए। बहर बहुत लंबी गुफ्तगू है। अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह ताला सबको सलसल
عقل سلیم عطا فرمائے آمین اللہم سب کو قرآن نبی غوث اعظم دستگیر حضرت احمد کبیر شاہ ذوالبیاوانی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہم آمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے آمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا آمین فرمائے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے آمین جن اللہ کا روزگار ہے اس میں ترقی عطا فرمائے آمین سب کو تمام حادثات و بلیات سے محفوظ فرمائے آمین اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات آپ لوگ بیٹھے رہیے.